Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, heat. Warm up. In a warm day, which type of clothes you want to prefer to wear? Look at the figures and tick right the correct figure. Warm days में आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? ये जो आपको पिक्चर दी गई है, you have to tick which one is correct. Heat. Heat is a form of energy which is transformed from a body at higher temperature to the one at lower temperature. When you hold a metal rod with its one end in fire, you find it difficult to hold it after some time. Why does it happen? It happens due to transfer of heat from one end to the other. There occurs a rise in the temperature of rod because of which you are not able to hold it. Temperature may be defined as the degree of hotness or coldness of an object. It tells us whether a given material is hot or cold and how hot or cold it is. अच्छा देखिए, हीट आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में. जैसे कि आप एक मेटल रॉड को पकड़ रहे हैं, हॉट मेटल रॉड को, ठीक है, और इसका एक जो एंड है वो आपके फायर में है, तो आपको कुछ टाइम के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एक एंड से दूसरे तक. फिर आपका टेम्परेचर राइज हो जाएगा जिसकी वजह से आप उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. मतलब ये हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना हॉट या कितना कोल्ड है. Hot and cold. In our daily life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some are cold. We see that some objects are hot and some are not that much hot. So how we decide that? Which object is hot, which is cold? We do this with a sense of touch. Would you think that a sense of touch is reliable? अच्छा देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है वो हम अपने सेंस ऑफ टच से पता करते हैं, बट क्या सेंस ऑफ टच सच में रिलायबल है? चलिए देखते हैं. एक्टिविटी 1. टेक 3 bowls, label them as A, B, C. Put some cold water in bowl A and hot water in bowl B. Add some cold water in hot water and put this water in bowl C. Now dip your left hand in bowl A and right hand in bowl B. After keeping your both hands in 2 mugs for 2 to 3 minutes, put both hands in bowl C. What you observe? Left hand tells water in bowl C is hot and right hand tells that water in bowl C is cold. So sense of touch is not reliable always. 3 bowls लेने हैं, A, B and C. कोल्ड वाटर आपने डालना है बोल A में, हॉट वाटर डालना है अपने बोल B में. एंड आपने क्या करना है कि कुछ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को आपने डालना है बोल C में. अब आपने लेफ्ट हैंड को डालना है बोल A में एंड राइट हैंड को डालना है बोल B में. ओके अब इसके बाद 2 से 3 मिनट रखने के बाद अब आपने क्या करना है, दोनों ही हाथ अपने बोल सी में डालने हैं. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, लेफ्ट हैंड को लगेगा कि वाटर जो है बोल सी में वो हॉट है ना, और राइट हैंड को लगेगा कि जो वाटर बोल सी में है वो कोल्ड है. सो सेंस ऑफ टच जो है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ऑलवेज आपका ये रिलायबल नहीं होगा. टेम्परेचर. When we touch an object, it may appear hot or cold. When we touch a lump of ice, it appears cold, and when we sip a hot cup of milk, it appears hot. What makes things appear hot or cold? The sensation of hotness or coldness depends upon the direction or flow of heat. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें हॉट या कोल्ड लग सकता है ना. जैसे कि हम आइस के लंप को टच करेंगे तो कोल्ड लगता है, जब हम हॉट कप ऑफ मिल्क को पियेंगे तो हमें हॉट लगता है. तो क्या चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हॉट है या कोल्ड है? जो सेंसेशन होता है हॉटनेस या कोल्डनेस का वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे. When heat flows from the object to our body, it appears hot to us. When heat flows from our body to the object, it appears cold to us. देखिए, जब भी हीट फ्लो होती है किसी ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी की तरफ तो हमें ऐसा लगता है कि वो हॉट है, और जब हीट फ्लो होती है हमारी बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट में तो हमें ऐसा लगता है कि ठंडा है. Measurement of temperature. We have learned that measuring temperature by touch is not reliable always. Special instruments are used to measure the temperature accurately. Temperature is measured by a device called thermometer. Thermometer. Most thermometers used in laboratories or at home carry mercury as the thermometric fluid. The mercury has been chosen as a thermometric fluid because it is shiny, silvery white, which is easily visible to eyes. It has a wide range of temperature, that is from 39 degrees Celsius to 357 degrees Celsius. When it expands or contracts with change in temperature, both the expansion and contraction are uniform.
It does not stick to the walls of the capillary tube, hence does not affect the reading. अच्छा, ज़्यादातर जो थर्मोमीटर्स होते हैं आपके जो लेबोरेटरीज़ या घर में हम यूज़ करते हैं उसमें मर्क्यूरी होता है. तो मर्क्यूरी को क्यों चूज़ किया गया है? क्योंकि एक तो ये शाइनी सिल्वरी है, वाइट है, जो कि ईजिली दिख जाता है. इसका टेम्परेचर रेंज भी काफ़ी वाइड है, यानी इसका 39 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेल्सियस. जब ये एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो आपका जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वो यूनिफॉर्म रहता है. एंड सबसे बड़ी बात ये कैपिलरी जो ट्यूब होती है उसकी वॉल से स्टिक नहीं होता और इसीलिए रीडिंग को अफेक्ट नहीं करता. However, as you have learned in previous primary classes, the laboratory thermometer differs from clinical thermometer both in the range and constriction. The range of clinical thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, and that of laboratory thermometer is from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. अच्छा, देखिए आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उनकी रेंज में ना थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे कि अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो उसकी रेंज ये है, और अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो उसकी रेंज ये है. द clinical thermometer has a constriction but not the laboratory thermometer. The constriction allows the temperature reading to be recorded even after the thermometer has been taken out of mouth. A doctor, therefore, before using clinical thermometer, jerks it to bring down the mercury below constriction in its bulb. अच्छा, देखिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता. तो जो कंस्ट्रिक्शन है वो क्या अलाउ करता है कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. जैसे कि माउथ से भी निकाल दिया गया है थर्मोमीटर, तब भी उसमें इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, और फिर जो उसे जर्क करते हैं तो देन मर्क्यूरी जो है वो नीचे जाता है. द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट इज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. In Kelvin scale, 0 degrees equals to 273 Kelvin. The temperature in degree Celsius and Fahrenheit are interconvertible based on the relation. देखिए कैल्विन स्केल में जो 0 डिग्री है वो आपका 273 कैल्विन के इक्वल है. अब जो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है ये इंटरकन्वर्टेबल है. देखिए इनके बीच में ये रिलेशन है. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 degree Fahrenheit minus 32, and degree Fahrenheit is equals to 9/5 into degree Celsius plus 32. Therefore, based on above relation, 0 degree Celsius is equals to 32 degree Fahrenheit and 100 degree Celsius is equals to 212 degree Fahrenheit. However, temperature readings in Celsius and Fahrenheit scale are the same only at one point when temperature value is 40. सिर्फ 40 पे ही दोनों की जो वैल्यू है ना आपकी सेम आती है, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में. Do you know the normal body temperature of human body is 37 degree Celsius. ये normal human body temperature है. These days digital thermometer is available which do not use mercury. These are electronic thermometer. और आजकल तो देखिए डिजिटल थर्मोमीटर्स आपके यूज़ किए जाते हैं जिसमें mercury नहीं होता है. Transfer of heat. Heat is a form of energy. It flows from a region of high temperature to a region of lower temperature. This flow of transfer of heat goes on till both regions come to same temperature. There are different ways through which heat is transmitted from one point to another. देखिए चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये फ्लो होता है हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन में. अच्छा, डिफरेंट तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसमिट होती है एक पॉइंट से दूसरे में. नंबर 1 इज कंडक्शन. It is the process of heat transfer among solids. The tiny particles of solids transmit heat to the adjoining particles through their vibratory motion. During conduction, heat moves from the hot end to the cold end without the actual displacement of the vibrating particles from their position. अच्छा, कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स में, राइट. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एडजॉइनिंग पार्टिकल्स में अपने वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू, राइट. और कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट आपकी मूव करती है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड तक करती है, बट इसमें जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का उनकी पोजीशन से. Activity 2. Take an iron rod or scale made of steel. Fix some light nails on the same side of the rod using wax. Fix the rod to an iron stand and heat the rod at the other end. Observe and record the order in which the nails fall off. You realize that the nail closer to the heating end fell first, followed by the succeeding nails to show that the conduction of heat takes place from the hot end to the cold end. एक आयरन रॉड या स्केल लेना है, कुछ उसमें नेल्स आपने फिक्स करनी है इस तरह से वैक्स की हेल्प से. ओके, अब आपने रॉड को फिक्स कर देना है और एक एंड पे आप क्या करेंगे, उसको आप वहाँ पे लगा देंगे कैंडल.
ओके अब आप देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि जो नेल्स है ना वो गिरना शुरू हो जाएंगे आपकी, राइट। तो जो नेल्स जो आपके हीटिंग एंड के पास होंगी, जैसे कि देखिए ये आपका हीटिंग एंड के पास जो पहली नेल है वो आपकी गिरेगी, देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, ओके। यानी कि जो हीट है आपका कंडक्शन के थ्रू आपका फ्लो हो रहा है फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। एक्टिविटी 3, टू स्टडी द डिफरेंस in the conductivity of different materials. Take an iron and a copper rod of same length and size. Fix equal numbers of some light nails on the same side of the rod using wax. Fix the rods to separate the iron stands and place them as shown in figure. Heat the rods at one end. Observe and record the order in which the nail falls off from both the rods. It is observed that the nails from the copper rod fell off first, then those from the iron rod. This shows that the materials differ in their conductivity. अच्छा, अब हमको ये शो करना है कि देखिए सभी जो मैटर्स में है, सभी जो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी है ना वो डिफरेंट होती है, ओके। डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट कंडक्टिविटी है। जैसे कि देखिए सेम जो अपनी एक्टिविटी की है उसको रिपीट करना है, बस अब हमने क्या करना है कि कॉपर रॉड को ले लेना है, दो सेम साइज की सेम लेंथ की रॉड लेनी है, कॉपर एंड आयरन रॉड। फिर इसी तरह से आप उसमें क्या करेंगे, नेल्स को फिक्स करेंगे, एक एंड पे हीट करना उसे शुरू कर देंगे। तो जब आप हीट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉपर रॉड में से नेल्स पहले गिरेंगे, ओके, एंड आयरन रॉड से बाद में गिरेगी। तो ये क्या शो करता है कि डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट कंडक्टिविटी होती है। From the above activity, we conclude that copper is a better conductor of heat than iron. Similarly, if the same activity is repeated using copper and aluminium, it is seen that aluminium is better conductor of heat as compared to copper. Materials that do not allow heat to be conducted through them are called insulator of heat. Wood, plastic, fur and air are insulator. अच्छा, सेम एक्टिविटी को अगर कॉपर और एल्यूमिनियम रॉड के साथ किया जाता तो वहाँ से निकल के आता आपका कंक्लूजन कि एल्यूमिनियम बेटर कंडक्टर है। तो जो मटेरियल्स हीट को कंडक्ट नहीं करने देते हैं, हीट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड दीज आर द एग्जांपल्स। Applications of conductors and insulators. Cooking utensils are made of metals because we want heat to be transferred quickly and efficiently from the flame to the food. Some even have copper bases because copper is a better conductor than steel or aluminium. कुकिंग यूटेंसिल्स आपके मेटल से बने होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हीट जो है जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए एफिशिएंटली फूड तक, राइट। अब कुछ आपने बर्तन देखे होंगे उनका कॉपर बेस होता है क्योंकि कॉपर जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली बेटर कंडक्टर होता है। Cups are not made of metal because they would get too hot for comfort. They are made of china, which is a poor conductor of heat. The handles of kettles, pans and so on are also made of insulators for the same reason. कप्स जो है आपके मेटल्स के नहीं बने होते क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, है ना। और आपके जो हैंडल्स होते हैं जैसे कैटल्स या पैंस के, या आपके हैंडल्स जो है वो किससे बने होते हैं, इंसुलेटर से, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड से है, ताकि आप उनको इजीली हैंडल कर सकें। Asbestos sheets or clay tiles, which are poor conductors of heat, are used for making the roofs of sheds in houses. If aluminium or iron sheets were used instead, they would conduct heat and the sheds or houses would become unbearably hot in summer and very cold in winter. अच्छा, जो एस्बेस्टस शीट्स या क्ले टाइल्स होती हैं वो आपके पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं, है ना, जिससे हम शेड्स की, हाउसेस की रूफ को बनाते हैं। अगर एल्यूमिनियम या आयरन शीट्स को यूज़ किया जाएगा तो वो हीट को कंडक्ट करेंगे और जो शेड है या जो हाउस है वो अनबेयरेबली हॉट हो जाएगा समर में और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा विंटर में। Glass is a bad conductor of heat. That is why a glass tumbler may crack if you suddenly pour hot tea or milk into it. The part of the tumbler in contact with the hot liquid gets heated and expands, while the part not in contact with the liquid remains cooler and does not expand. This is why the tumbler cracks. If you place a stool spoon in the tumbler and then pour in the tea, the tumbler will not crack. Steel, being good conductor, transfers away the heat quickly and thus reduces the heat available to the part of the tumbler in contact with the hot liquid. ग्लास यानी कांच आपका बैड कंडक्टर होता है हीट का, इसीलिए देखिए जो ग्लास टम्बलर है ना आपका कई बार क्रैक हो जाता है अगर आप उस पर हॉट टी या मिल्क डालते हैं, क्योंकि देखिए जो टम्बलर यानी ग्लास का जो पार्ट है जो आपके हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि उसको हीट मिल रही है, और जो उसके कांटेक्ट में नहीं है हॉट लिक्विड के तो वो तो कूलर रहेगा, इसलिए एक्सपेंड नहीं होगा। तो इसकी वजह से टम्बलर क्रैक हो जाता है। अगर आप उस टम्बलर में, उस ग्लास में, कांच के ग्लास में स्टील का स्पून डालेंगे और उसके बाद उसमें हॉट टी डालेंगे तो टम्बलर क्रैक नहीं होगा, क्योंकि स्टील आपका गुड कंडक्टर होता है एंड ये हीट को क्विकली ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से जो हीट जो अवेलेबल था टम्बलर के कुछ पार्ट में वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। The walls and door of a refrigerator have two layers with an insulating material in the middle.
This material prevents heat from the surrounding from entering the refrigerator. The same is true of thermos flasks and geysers. रेफ्रिजरेटर का जो वॉल्स या डोर्स होते हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं जिसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बीच में, और जनरली वो थर्मोकॉल लगाया जाता है. तो ये जो मटेरियल होता है क्या करता है कि जो हीट आपकी सराउंडिंग से आ रही है ना उसको प्रिवेंट करता है. ओके, एंड आपका सेम थर्मस फ्लास्क एंड गीजर्स में भी होता है. कन्वेक्शन, it is the process by which heat gets transferred by the actual movement of particles. Heat transfer in liquids and gases generally occur through convection. अच्छा, अभी तक हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो इसमें आपके क्या होते हैं, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, बट कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, और इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है. और ये आपका कन्वेक्शन जो है वो जनरली आपका किस में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में. Activity 4. To study convection among fluids. Take a round bottom flask filled with water. Insert a straw and pour some potassium permanganate crystals through the straw. Place the beaker or wire gauge on a tripod stand. Heat the mixture using a spirit lamp or Bunsen burner at low flame. Observe the movement of the particles of potassium permanganate and record your observations. You saw that the potassium permanganate particles moved from bottom to top to be replaced by the water from the top. आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है जिसमें आपका पानी भरा होगा. इसमें आपने एक स्ट्रॉ को इंसर्ट करना है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है, उसके क्रिस्टल्स डालने हैं स्ट्रॉ के थ्रू. इसके बाद आपने बीकर को रखना है ट्राइपॉड स्टैंड में, इस मिक्सचर को हीट करना है, एंड उसके बाद आप पार्टिकल्स के मूवमेंट को नोटिस करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के. आप देखेंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम से टॉप में आपके मूव करेंगे, है ना, जिससे कि वो रिप्लेस कर रहे हैं बाय द वाटर फ्रॉम द टॉप. We can observe convection in gases. Therefore, when you heat an empty container with its lid closed, the lid blows off soon after heating the container. It is the same principle that was used to make the steam engine move or a pressure cooker to whistle. The same principle of convection is involved in formation of the sea breeze and land breeze. तो देखिए आपको कन्वेक्शन आप गैसेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपने एक एम्प्टी कंटेनर है उसको हीट करेंगे, है ना, उसका मतलब लिड आपका जो क्या है क्लोज रहेगा, तो लिड जैसे ही कंटेनर हीट हो जाएगा लिड जो है इट विल ब्लो ऑफ. सेम प्रिंसिपल आपका वर्क करता है स्टीम इंजन पे या फिर आपका प्रेशर कुकर में, राइट. एंड सेम प्रिंसिपल आपका जो कन्वेक्शन है उसकी वजह से सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का फॉर्मेशन होता है. सी ब्रीज, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीट फास्टर देन द वाटर. द एयर अबव लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश्ड इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. अच्छा, दिन के टाइम में क्या होता है कि लैंड जो है आपकी वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है. अब लैंड के ऊपर की जो एयर है वो आपकी वार्म रहेगी तो वो राइज अप होगी और उसकी जगह लेगी जो समुद्र में आपकी सीज में आपकी जो ठंडी हवाएं होंगी. तो इसीलिए दिन के टाइम में आपकी चलती हैं सी ब्रीज, यानी सी से लैंड की तरफ. लैंड ब्रीज, during the night the land cools down much faster than the sea, so the air above the land cools faster than the air above the sea. The warm air above the sea rises up and cool air above the land rushes to take its place. This cool air that moves from land towards the sea is called land breeze. अब रात के टाइम में क्या होता है कि लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है वाटर के कंपैरेटिवली, तो अब जो आपकी एयर है वो सी के ऊपर जो है वार्म रहेगी तो वो राइज अप होगी और उसकी जगह लेगी लैंड में जो आपकी ठंडी एयर है, तो इसीलिए रात को आपकी लैंड ब्रीज चलती है. Application of convection currents. Ventilators and exhaust fans are usually near the ceiling of a room because the air we breathe out is warmer and lighter than ordinary air. It rises and escapes through the ventilator or exhaust fan, and cold fresh air enters through the windows. आपने वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस देखे होंगे, ये आपके रूम के सीलिंग के पास होते हैं क्योंकि देखिए जब हम एयर जो हम ब्रीद आउट करते हैं वो वार्मर होती है तो लाइटर होगी, राइज अप होगी, है ना, और उसकी जगह आपकी ठंडी हवाएं लेंगी जो आपकी विंडोज से चलेंगी. हॉट स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल फर्नेसेस राइज एंड स्केप थ्रू चिमनीज. हीटर्स, ब्लोअर्स एंड हीट कन्वेक्टर्स हीट अ रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट. आपकी जो हॉट स्मोक या गैसेस जो इंडस्ट्रियल फर्नेसेस से राइज होती हैं वो स्केप हो जाती है चिमनीज के थ्रू. हीटर्स, ब्लोअर्स और हीट जो कन्वेक्टर्स हैं वो रूम को हीट करते हैं बाय सेटिंग कन्वेक्शन करंट्स. When firemen enter a building in which a fire has broken out, they generally crawl in because the choking smoke and hot air rise upward. जो फायरमैन जो है एक बिल्डिंग में एंटर करता है जिसमें जैसे कि फायर ब्रेकआउट हो गई है तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं क्योंकि जो चोकिंग आपका स्मोक होगा और जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेंगी, राइट. Radiation.
It is a process by which heat is transferred without any contact between the heat and the heated object. We feel warmth when sitting beside the fire, not because of convection, but because of radiation. The warm air from the fire rises up. It does not move towards the sides. The materials with dark surfaces or black color are better absorber or emitters of the heat, whereas the shiny color surfaces are good reflectors of the radiation. Therefore, you see that the inside container of a thermos flask or the containers for storing petrochemicals are silver polished to reflect the radiation. अच्छा, रेडिएशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होती है बिना किसी कांटेक्ट में आए हीट और हीटेड ऑब्जेक्ट के. जैसे कि हम फायर के पास बैठे होते हैं तो हमें वार्मथ मिलती है, राइट, बट ये कन्वेक्शन की वजह से नहीं बल्कि रेडिएशन की वजह से. आपकी जो वार्म एयर है जो फायर से राइज अप होगी, है ना, और ये फिर क्या करेगी, ये साइड्स में मूव नहीं करेगी. तो मटेरियल जिनका डार्क सरफेस होता है या ब्लैक कलर होता है वो बेटर एब्जॉर्बर होते हैं या एमीटर होते हैं हीट के, जबकि जो शाइनी कलर्स सरफेस होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं रेडिएशन के. इसीलिए थर्मस फ्लास्क का जो अंदर का कंटेनर होता है या किसी भी पेट्रोकेमिकल्स का जो कंटेनर होता है जिसमें पेट्रोकेमिकल को स्टोर किया जाता है वो सिल्वर पॉलिश होते हैं जिससे कि वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सके. Activity 5. To show that dark colors are better absorbers than shiny colors. Take two 500 ml conical flasks. Mark the flask A and B. Paint flask A with black color and flask B with silvery shining color. Fill both the flasks with equal volumes of water. Cork both the flasks tightly using one bore cork fitted with thermometer. Record the temperature in both the flasks. Place the flask in bright sunlight at the same place. After 15 minutes, record the temperature and measure the difference in initial and final temperatures. Record your observations and discuss with your friends. The temperature of water in a flask painted black is higher than in other flasks. This proves that black color is a good absorber of heat or radiation. आपने देखिए 500 ml की conical flask लेने हैं, A और B उनको मार्क करना है. फ्लास्क ए को आप ब्लैक कलर से पेंट करेंगे, फ्लास्क बी को आप किसी सिल्वरी शाइनिंग कलर से. दोनों ही फ्लास्क को में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना है, कॉर्क लगा देनी है टाइटली, ओके, एंड इनमें आपका थर्मोमीटर सेट होना चाहिए. अब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे दोनों फ्लास्क में. अब दोनों फ्लास्क को आप ब्राइट सनलाइट में सेम प्लेस पे रखेंगे. 15 मिनट्स के बाद जब टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे ना तो इनिशियल और फाइनल जो टेम्परेचर है ना उनमें आपने क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है. अब देखिए जो टेम्परेचर होगा जो फ्लास्क ए में था यानी जिसको हमने पेंट किया था ब्लैक कलर में उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो ये क्या शो करता है कि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर होता है हीट या फिर रेडिएशन का. एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन. Electric room heaters which have rod-like heating elements have a curved polished surface behind the elements. This surface reflects radiant energy and concentrates it in the forward direction. You feel the heat even if you stand a few feet away from the heater. Heaters used for cooking do not have a reflector. अच्छा, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स आपने देखे, इनमें एक रॉड लाइक हीटिंग एलिमेंट्स होता है जो कि कर्व्ड पॉलिश सरफेस होता है बिहाइंड द एलिमेंट्स. तो ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्ट करता है रेडिएंट एनर्जी को एंड देन कॉन्सेंट्रेट करता है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो आपको हीट फील होती है, आप कई फीट दूर भी खड़े होंगे ना हीटर से तब भी आपको हीट फील होती है. तो हीटर्स को यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए जो उसमें रिफ्लेक्टर नहीं होते. Therefore, they radiate heat in all directions, so you do not feel the heat if you sit a few feet away from the heater. अब क्योंकि इनमें आपके रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं तो ये हीट को रेडिएट करते हैं सारे डायरेक्शन में, तो इसीलिए आपको अगर आप उसके कुछ दूरी पे भी बैठे होंगे तो आप गर्म फील नहीं करेंगे. आप It is better to wear white or light colors in summer because they absorb less radiant heat than do dark colors. अब समर्स में लोग लाइट कलर्स पहनते हैं, वाइट कलर्स पहनते हैं क्योंकि ये लेस रेडिएंट हीट को एब्सॉर्ब करते हैं. Radiant heat from the sun is used to cook food in a solar cooker. The inner surfaces of solar cookers are painted black so that the radiant energy entering through the glass top is absorbed better. Reflecting solar films are used on car windows to prevent heating by radiation. The films reflect radiant energy and stop it from entering the car. अब जो रेडिएंट हीट होती है सन की उसको यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए सोलर कुकर में. तो जो इनर सर्फेसेस होते हैं सोलर कुकर के उनको ब्लैक पेंट किया जाता है जिससे कि जो रेडिएंट एनर्जी है जो ग्लास टॉप पे एंटर कर रही है वो बेटर एब्जॉर्ब हो सके. रिफ्लेक्टिंग सोलर फिल्म्स को यूज़ किया जाता है कार विंडोज़ में जिससे कि जो प्रिवेंट कर सके हीटिंग को बाय रेडिएशन.
तो फिल्म जो हैं वो रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये कार के अंदर एंटर होने से उसको स्टॉप करते हैं. थर्मस फ्लास्क. A thermos flask is a special type of vessel which keeps hot liquid hot and cold liquid cooled for a long time. It is made in such a way that it reduces the loss of heat by conduction, convection and radiation to a minimum level in the following manner. थर्मस फ्लास्क आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ वेसल होता है जो गर्म चीज़ों को गर्म और ठंडी चीज़ों को ठंडा रखता है, राइट. तो किस तरह से एक्चुअली ये काम करता है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों पे. A thermoflask consists of a double-walled glass bottle. Glass is chosen as a material for making thermos flask because it is a bad conductor of heat. All the air is evacuated, removed from the space between the two walls of the glass bottle to prevent the transfer of heat by conduction and convection. We know conduction and convection cannot take place in vacuum. Thermoflask में आपका double-walled glass bottle होती है, ओके और इस तरह का मटेरियल होता है, उसको चूज़ किया जाता है जो कि बैड कंडक्टर हो हीट का. अब जितनी भी एयर है उसको रिमूव किया जाता है उस स्पेस से जो दो वॉल्स के बीच में होती हैं ग्लास बॉटल के, जिससे कि जो ट्रांसफ़र है हीट का बाय कंडक्शन या कन्वेक्शन उसको प्रिवेंट किया जा सके. और आपको पता है तो है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वैक्यूम में नहीं होते हैं. The surface of double-walled glass bottle is silvered like a mirror. This is done to reduce the transfer of heat by radiation. We know a shiny surface is a poor absorber and also a poor emitter of heat. अब जो सरफेस होता है डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल का वो सिल्वर्ड होता है मिरर की तरह. तो ये इसलिए किया जाता है जिससे कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का बाय रेडिएशन उसको रिड्यूस किया जाए, है ना, क्योंकि शाइनी सरफेस होता है वो पोर एब्जॉर्बर होता है और पोर एमिटर होता है हीट का. A plastic stopper is fitted in the mouth of the flask and a plastic cap is screwed over the stopper. This is done to reduce conduction of heat as plastic is a bad conductor of heat. अब प्लास्टिक स्टॉपर को फिट किया जाता है फ्लास्क के माउथ में और एक प्लास्टिक कैप को स्क्रू किया जाता है इसके स्टॉपर के ऊपर. तो ये क्यों किया जाता है? ताकि जो कंडक्शन है हीट का वो रिड्यूस हो सके क्योंकि प्लास्टिक आपका बैड कंडक्टर होता है हीट का. The glass bottle is held in a place inside the metal case with the help of cork pieces. This is done to prevent transfer of heat by conduction. Cork is a bad conductor of heat. अब ग्लास बॉटल को हेल्ड किया जाता है एक प्लेस में मेटल केस के अंदर कॉर्क की हेल्प से. और ये क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ताकि जो हीट कंडक्शन के थ्रू आपकी जो ट्रांसफ़र होगी उसको प्रिवेंट किया जाए. एंड अगेन आपको पता है कॉर्क जो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है. Thus, the transfer of heat into or out of the closed thermos flask is very less. So hot liquid remain hot and cold liquid remain cold inside the thermos flask for a long time. So जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का एंटर और आउट उस क्लोज थर्मस फ्लास्क के बहुत ही कम है, इसीलिए हॉट लिक्विड हॉट रहता है, कोल्ड लिक्विड कोल्ड रहता है लंबे समय के लिए थर्मस फ्लास्क में. Notes for the chapter. The measure of degree of hotness of a substance is called its temperature. The transfer of heat in solids usually takes place by this method. Substances that allow heat to pass through them quite easily are called conductors and those that do not are called insulators. The transfer of heat in liquids and gases takes place by convection. Land breeze and sea breeze are a result of unequal heating of air present over land and sea by the sun. Transfer of heat by radiation requires no medium. Heating of earth by sun is an example of heat transfer by radiation. Dark colored objects are better absorbers of heat than light colored objects. This is the reason why we prefer light colored clothes in summer and dark colored clothes in winters. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.